ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گوٹکی کے عہدے تاحال خالی ہیں، کسی بھی افسر کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ یہ تعیناتی کیوں نہ ہو سکی ہے، جانتے ہیں سمیر قریشی کی اس رپورٹ میں۔ سابق ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ بگٹی کے درمیان تنازع کے بعد اعلیٰ حکام نے ان دونوں کو عہدوں سے فارغ کر کے انکوائری شروع کرا دی تھی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ دوسری جانب سندھ کے حساس علاقوں سکھر میں تاحال کوئی ڈی آئی جی اور نہ ہی گھوٹکی میں کوئی ایس ایس پی تعینات کیا جا سکا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور یہ عہدے خالی ہیں۔ افسران کی عدم تعیناتی سے سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن متاثر ہونے لگا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت اب تک کسی بھی افسر کا نام فائنل نہ کر سکی ہے۔ پہلے ڈی آئی جی کے لیے فیصل چاچڑ اور ایس ایس پی کے لیے سمیع اللہ سومرو کے نام سامنے آئے تھے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں افسران پر علاقے کے منتخب نمائندوں کو اعتراض ہے، جس کے بعد کوئی اور نام سامنے نہ آ سکے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں ہونے والے تنازع کے بعد اب سندھ حکومت اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن غیر جانبدار افسران کی تعیناتی چاہتے ہیں، لیکن منتخب نمائندے اپنی مرضی کے افسران کی تعیناتی پر بضد ہیں۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ کے پاس اس وقت سکھر کا اضافی چارج بھی ہے، جبکہ ایس ایس پی خیرپور کے پاس گھوٹکی کا عارضی چارج ہے، جس کے باعث سکھر، لاڑکانہ رینج اور خیرپور میں بھی امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سمیر قریشی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ ضلع انتظامیہ کی ملی بھگت سے شہر اقبال کے بازاروں میں قائم غیر قانونی منی پیٹرول مشینوں سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا۔ غیر معیاری اور کم مقدار پیٹرول کی وجہ سے قیمتی گاڑیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے سیالکوٹ میں بااثر افراد کی جانب سے رہائشی علاقوں میں لگائے گئے منی پیٹرول مشینوں نے عوام کے جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا۔ گلی محلوں بازاروں میں لگی ہزاروں غیر قانونی مشینیں متعدد بار حادثات کا باعث بن چکی ہیں، جس میں قیمتی انسانی جانیں، انسانی اعضاء اور کروڑوں روپے کے املاک کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ مصطفیٰ آباد میں صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف بابا مٹھو شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ عرس کا آغاز پیر الیاس قادری بابا جی سرکار، صدر جماعت اہل سنت مفتی فیضان قادری، میاں قاضی صدیق نقشبندی نے دربار شریف کو غسل دے کر عرس پر آنے والے عقیدت مندوں اور زائرین کے لیے لنگر کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ عرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پاک پتن میں دوران ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے وفات پانے والے پاک پتن پولیس کے اے ایس آئی شوکت خان بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پاک پتن پولیس کے اے ایس آئی شوکت خان بلوچ جو تھانہ احمد یار میں بطور تفتیشی آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، گزشتہ رات دوران ڈیوٹی حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے۔ مرحوم اے ایس آئی کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 13 ایس پی میں ادا کی گئی۔ ڈی پی او پاک پتن طارق ولایت سمیت ایس ڈی پی او سٹی سرکل مہر وصل افضال، ایس ڈی پی او عارف والا سرکل ملک طارق جاوید آوان اور کثیر تعداد میں پولیس افسران و اہلکار نے مرحوم اے ایس آئی کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں صاف پانی کی عدم فراہمی شہریوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی، شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں تحصیل انتظامیہ کی ہٹ دھرمی اور نااہلی کے سبب شہر میں ایک بھی صاف پانی کے فلٹر پلانٹ کی تنصیب نہ ہو سکی۔ شہری شہر سے دور 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی کی وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی فراہم کیا جائے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुजरात और खानिया में सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जदीद खतूत पर करने के लिए एक अहम इक़दाम किया गया। ज़हूर इलाही स्टेडियम में मुनक़िद तकरीब में कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न नवीद हैदर शिराजी और डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन और CEO चौधरी हुमायूं सरवर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरा का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। पतोकी में कंजुल ईमान के ज़ेर एहतमाम फ़न ख़त्ताती का मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब भर से तलबा तलबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने वालों ने हाथ से तराशे गए फनपारों में जान डाल दी, जिसे देखने वाले दंग रह गए। आपको बताएं कि पतोकी में कंजुल ईमान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला ख़त्ताती का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से तलबा तलबात ने शिरकत की और बेहतरीन फनपारे बनाए, जिनको देखने वाले देखते ही रह गए। प्रोग्राम में अवार्ड्स याफ्ता खत्तातों ने शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल आसिफ अली भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में आर्ट्स की अहमियत और दौरे हाजिर में इसकी ज़रूरत के मुतालिक आगाह किया। शेखुपुरा में SHO थाना A डिवीज़न में उमर शिराज की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश कासिम गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मकदार में मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे शेखुपुरा SHO थाना A डिवीज़न उमर शिराज की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया और भारी मकदार में मंशियात भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिराज ने मीडिया से गुफ्तगू में बात करते हुए कहा, माशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में है। शकरगढ़ शहर के हाई पासेस टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शकरगढ़ के मेन बाईपास जो कि दोनों तरफ से जो शकरगढ़ शहर को मिलाता है, मैं उस मेन बाईपास पर मौजूद हूँ जो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार था। इस पर MN अनवारुल हक ने नोटिस लेते हुए काम शुरू करा दिया है। जो कि शहरी गुजर रहे हैं इस रोड से, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह ये रोड बनना तमीर शुरू हो गया, तो शुक्र अदा रोड बन रहा, ठीक ठाक रोड बन रहा। अनवारुल हक जो आप लोगों से जो वादा किया है उनमें उन वादों में पूरा कर रहे हैं, जो सड़क बना रहे हैं, शुक्रिया अदा करने हैं। जी बिल्कुल, आपने शायरी की बात सुनी। जो गुजर रहे थे यहाँ से, उनका कहना है कि हम MN अनवारुल हक का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने शहरियों से जो किए वादे हैं वो पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम हुकूमत पंजाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुस्लिम लीग नून का, जो ये बहुत जल्दी से काम जो इसको नोटिस लेते हुए काम करा रहे हैं। जी रजाना टूबर टैक्सिंग में स्मोक की रोकथाम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। यहाँ आपको बताएंगे किसानों से गुफ्तगू करते हुए ज़राअत ऑफिसर नेहा कायनात ने किसानों को फसलों की बाकियात को आग लगाने से सख्ती से मना किया, ताकि फसलों की बाकियात को आग लगाने से नुकसानात से बचा जा सके, और किसानों को स्मोक के बारे में खुसूसी तालीमात से आगाह किया और जदीद आने वाले आलात के बारे में आगाही दी। किसानों की कसीर तादाद ने ज़राअत ऑफिसर नेहा कायनात को इसकी काविश को सराहा। किसानों ने मुतालबा किया इस तरह के सेमिनार्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। खुराक की तैयारी से तरसील तक पंजाब फूड अथॉरिटी की कड़ी निगरानी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की फूड सेफ्टी टीम के हमरा चाय पैकिंग यूनिट की इंस्पेक्शन 5500 किलो ज़ायदुल मयाद चाय की पत्ती जब्त कर ली गई। आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीम ने चेक 88 टन आर में मारूफ चाय फैक्ट्री पर कार्रवाई करके हिफ्ज़ान सेहत के लिए मौजू ना होने पर गैर मयारी चाय स्टोरेज एरिया से निकाल दी गई है। फूड अथॉरिटी टीम ने गैर मयारी चाय की पत्ती ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दी है। फूड सेफ्टी टीम ने चाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को वार्निंग भी जारी कर दी है।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डायरेक्टर हेल्थ सरगोदा डिवीजन राना मोहम्मद इलियास ने THQ अस्पताल दरिया खान का दौरा किया। आपको बताते चलें कि डॉक्टर शाहिद महमूद ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड जिनमें एमरजेंसी मेडिकल पैड से OPDs के अलावा अस्पताल के मुख्तलिफ एरिया का दौरा किया। डायरेक्टर हेल्थ सरगोदा डिवीजन राना मोहम्मद इलियास ने वार्ड में दाखिल मरीजों और उनके लवाहिकीन से हेल्थ की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और MS डॉक्टर शाहिद महमूद की काविशों को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने THQ हेडक्वार्टर अस्पताल में दरिया खान में कायम पोलियो काउंटर का विजिट किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुल्क भर की तरह तहसील भवाना में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे भवाना के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमें सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। घर घर टीमें जाकर 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। भवाना लारी अड्डा, अस्पतालों और इसके अलावा स्कूलों में भी हुकूमत की तरफ से सहूलत मुहैया की गई है, जहाँ पोलियो की टीमें शाना बशाना काम कर रही हैं। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने कार्रवाई करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अहमद महमीउद्दीन की हिदायत पर DSP सदर सर्किल मोहम्मद अमजद खोकर SHO थाना सदर अमानुल्लाह गोंदल ने कार्रवाई करके मनशियात और असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली है। जतोई में बेटा पैदा ना करने की रंजिश में खावन समेत ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद। बहू जख्मी हालत में मुकद्दस बतौल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान में बेटी पैदा करने की रंजिश में खावन और ससुरालियों ने मिलकर बहू को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकद्दस बतूल के मुताबिक बेटा पैदा ना करने पर ससुरालियों, जिनमें सास, ससुर, देवर, नंद और शौहर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। शदीद तशद्दुद के बायस हमल ज़ाया होने का खदशा है। मीडिया से बात करते हुए मुतासरा मुकद्दस बतूल ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ की अपील की। मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली की ज़ेरे सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना का इजलास मुनक़िद किया गया। आपको बताएं कि इजलास में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन समेत कौंसिल मेंबरान शेर मोहम्मद, नईम तैनो, दानिश लगारी ने शिरकत की, जहाँ पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जबकि कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया गया। ताहम पोलियो फ्री पाकिस्तान मुहिम को मुकामी सतह पर तेज़ करने का फ़ैसला भी किया गया है। इस मौके पर कौंसिल मेंबरान की जानिब से इजलास में पेश करदा तमाम तजावीज़ को मुतफ़िक़ा तौर पर अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया गया। खून सफ़ेद हो गया, अंधे कत्ल का सुराग पुलिस ने लगा लिया। कत्ल में भाई भाई का कातिल निकला। यहाँ आपको बताएंगे थाना कोटली के इलाके मौजूद वरियाम में 2 यौम कबल बैरून मुल्क से आए लापता होने वाले अब्दुल रहमान की नाज गांव के खेतों से मिली, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जिस पर पुलिस को भाई पर शक गुजरा तो मजीद तफ्तीश से बात सामने आई कि सगे भाई ने दीगर 3 मुलजिमों की मदद से अपने भाई को कत्ल करने के बाद खुद ही मुद्दई बन गया। मुलजिमान ने मकतूल को पहले पत्थर मारे, बाद अज़ां फायर मार दिया। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से इंटर इम्तहानात प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसके लिए बोर्ड ऑफ हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाली तलबा को भी मदऊ किया गया। हैदराबाद से देखिए ब्यूरो चीफ इमरान खान की ये रिपोर्ट। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से इंटर इम्तहानात प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसके लिए बोर्ड ऑफिस हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 तालिबात के सेम नंबर थे, इसलिए सेकंड पोजीशन 2 बच्चों के अंदर टाई अप हो गई है और फर्स्ट पोजीशन सुपीरियर कॉलेज को है, हयात को है, काउंटी को है और हाईएस्ट को है। पहले मैं देखा करता था कि हमारे
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो उसकी तादाद ज़्यादा रहती थी, लेकिन इस मरतबा बड़ी खुशी की बात है कि हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी जगह बनाई है और टॉप 10 के अंदर वो उनका नाम भी शामिल हुआ है। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाली तालबात और उनके वालिदैन को भी मदऊ किया गया। इंटर इम्तिहानात प्री मेडिकल ग्रुप में नेहा मुजाहिद ने पहली, अलीना असलम और रबिया ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फर्स्ट पोजीशन आई है और मैं सुपीरियर कॉलेज ऑफ साइंस हैदराबाद से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है मेरी फैमिली और पेरेंट्स सबके लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरा नाम रबिया है और मैंने BISC हैदराबाद में सेकंड पोजीशन हासिल की है काउंटी गर्ल्स कॉलेज से। मैं यहाँ पर बहुत फ़ख्र के साथ खड़ी हूँ और बहुत मेहनत की थी और अपने अल्लाह पर भरोसा रखा था और इसी वजह से मैंने आज ये दिन देखा है। सेकंड पोजीशन आई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्र है कि मेरी ये पोजीशन आई है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया, जिस पर उनके वालिदैन इंतहाई खुश और मुतमईन नजर आए। कैमरा मैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़। पाकपतन के दरबार हजरत बाबा फरीद से अगवा होने वाले बच्चे बाजियाब। 5 माह का अगवा शुदा बच्चा रहीम यार खान से बाजियाब कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन में दरबार बाबा फरीद के अगवा शुदा बच्चे रहीम यार खान पुलिस से बाजियाब करवा लिया गया। खातून 5 माह का बच्चा दरबार बाबा फरीद से अगवा करके ले गई थी। पुलिस ने नाका लगाकर बस सवार अगवाकार खातून को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवा लिया। रहीम यार खान पुलिस ने बच्चा बाजियाब करवा के मां के सुपुर्द कर दिया। बच्चा अगवा में मुलव्विस खातून को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन मोहम्मद वसीम डार और फातिमा असद वेलफेयर के बानी मारूफ मौलज डॉक्टर असद इम्तियाज़ ने सुन्नत फाउंडेशन गुजरावाला का दौरा किया और थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की अयादत की। इस मौके पर सुन्नत फाउंडेशन के CEO हाजी सरफराज अहमद ने उन्हें इदारे की कारकर्दगी के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए बताया कि उनका इदारा खून की बीमारियों से मुतासरा बच्चों बिलखुसूस थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून की फराहमी बगैर किसी कीमत के फराहम करता है और इस नेक काम में उन्हें मुखिर हजरात का ताउन भी हासिल होता है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन मोहम्मद वसीम डार ने सुन्नत फाउंडेशन के काम की तारीफ करते हुए उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। शोरकोट में बनी वाहिद तफरी का बाहू पार्क में सहूलियात का फुकदान देखने में नज़र आ रहा है। यहाँ आपको बताएंगे तहसील शोरकोट में बनी वाहिद तफरी का, जो कि पूरी तहसील शोरकोट के लोगों के लिए सैरगाह की हैसियत रखती है, इसमें सहूलियात का फुकदान देखने में नज़र आ रहा है। झूले बेंचेस टूट फूट का शिकार है। वॉशरूम्स की बाकायदा तौर पर सफाई नहीं की जाती और वाटर कूलर जो कि आवाम के पानी पीने की सहूलत के लिए लगाया गया था वो भी बंद पड़ा है। इस हवाले से शोरकोट के लोगों का कहना है करोड़ों की लागत से तामीर किए जाने वाला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का नज़र आ रहा है। लोगों का डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा है कि इस पार्क में सारी सहूलियात दी जाएँ ताकि हमारी सैर के दौरान आने वाली इन मुश्किलात का खात्मा हो सके। आरिफ आला में नवाही कस्बा कबूला में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से 26 साला नौजवान मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई है। फैसलाबाद शुगर मोटर शेखुपुरा रोड पर करंट लगने से 32 साला मजदूर का ड्राइवर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 की रिपोर्ट के मुताबिक मजदा में धागा लोड था। मजदे का हेल्पर मजदे से धागा उतारते हुए मेन तारों से टकरा गया। हेल्पर से करंट पास होकर मजदे में आया और ड्राइवर को करंट लग गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खड़क की जानिब से ज़िला भर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक जिला भर में खुली चारी का सिलसिला जारी है। आज थाना सदर मियां चंदो में खुली चारी लगाई है। तो बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिसों के इस्तेमाल कार्ड जाएगा रोजाना की बुनियाद पर अब जिला भर के थानों में और मसाजिदों में खुली चारी लगा रहे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पुलिस स्टेशन सदर मियां चन्नू में खुली कचहरी लगाई है, जहां एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओ मियां चन्नू और एसएचओ साहब मेरे साथ हैं। हमने यहाँ दर्जनों जो कंप्लेनेंट हैं, साइलिन की बात सुनी है, उस पर फ़ौरन उनके मसले मसाइल के हल के ऑर्डर दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ अपनी क्राइम मीटिंग भी की है एसएचओ और सारे तफ्तीशियों के साथ मिलकर। उनको यही कहा है कि हमने मेरिट इंश्योर करना है, तफ्तीश में भी, कंप्लेंट में भी, और इलाके में अमन अमान कायम करना है, और मंशियात का और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके खिलाफ क्रैक डाउन और ज़्यादा तेज़ करना है, ताकि सदर मियां चन्नू का इलाका है बहुत अहम है, इसकी दूसरे ज़िलों के साथ बाउंड्री मिलती है, यहाँ पीस रहे, अमन रहे और लोगों की इज्जत, माल और जान महफूज रहे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े का ये कहना था कि रोजाना के बुनियाद पर खुली चारी का सिलसिला जारी है। जी। कबीरवाला में पुलिस थाना 12 मील की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। यहां आपको बताएंगे पुलिस थाना 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुखबिर की इत्तला 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मंशियात और दीगर सामान बरामद कर लिया। रुझान में तलबा की सलाहियतों को उजागर करने और साइंसी दिलचस्पी पैदा करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के हवाले से नुमाइश का इनेकाद किया गया। रुझान में स्कूल के बच्चों की सलाहियतों को निखारने और तलबा में साइंसी दिलचस्पी पैदा करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज़ स्कूल में साइंसी मॉडल की नुमाइश की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल तैयार करके खूब अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। एक्सीलेंस बॉयज़ रुझान में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। इस एग्जीबिशन में तलबा ने अपने असातिज़ा की मदद से मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं। साइंसी नुमाइश में असातिज़ा की मेहनत और लगन से स्कूल के बच्चों ने 35 से ज़्यादा साइंसी मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें बिजली पैदा करना, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम एंड रैन वर्किंग वाटर डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइट समेत मुख्तलिफ किस्म के मॉडल बनाए गए। मैंने साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे मॉडल देखे, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ और नया सीखने का मौका दिया। साइंस एग्जीबिशन का मकसद तलबा में साइंसी फ़िक्र, सोच और दिलचस्पी पैदा करना है, ताकि यही बच्चे मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर और सियासतदान बनकर कौम मुल्क की खिदमत कर सकें। कैमरा टीम के साथ फौजली मदारी, मेट्रो 1 न्यूज़ रुझान। सालाना सेकेंडरी स्कूल्स टूर्नामेंट आज 30 अक्टूबर से मॉडल हाई स्कूल सादकाबाद में शुरू हो गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अतीक से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह सादिकाबाद मॉडल हाई स्कूल में भी सेकेंडरी स्कूलों में जो टूर्नामेंट का आगाज़ है वो आज 30 अक्टूबर को हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कबड्डी कोच राना अकबर साहब मौजूद हैं। चलते हैं इनसे जानते हैं कि ये टूर्नामेंट कितने दिन जारी रहेगा और इसमें कौन कौन सी गेमें हो रही हैं। जी हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट का आज से आगाज़ हो रहा है। तो इसमें क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो दौड़ और नेज़ा, हाई जंप, लॉन्ग जंप और इस तरह की तमाम इवेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। और माशाल्लाह बच्चे बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और तहसील सादकाबाद का ये मॉडल हाई स्कूल है जहाँ से गेमों का आगाज़ हो रहा है, और पूरी तहसील के जो स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल्स, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि पूरे सादकाबाद की तहसील के जितने भी स्कूल हैं वो मॉडल हाई स्कूल में सेकेंडरी टूर्नामेंट जो है इसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, और बच्चों की सेहत और इनको तंदुरुस्त रखने के लिए एक्टिविटी करवाई जाती है। जी, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने और अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने थाना सफदराबाद में खुली कचहरी लगाई। DPO शेखपुरा ने अवाम के मसाइल सुनकर उनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए DPO
शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने थाना सफदराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। थाना सफदराबाद आमद पर अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने डीपीओ शेखपुरा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीपीओ शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने खुली कचहरी में फर्दन तमाम साइलिन के मसाइल सुने और उनको फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डीपीओ सर्कल सफदराबाद खालिद हुसैन तारर, एसएचओ थाना सफदराबाद चौधरी अब्दुल लतीफ गुज्जर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया, अवामुल नास और पुलिस अफसरान को खिताब करते हुए कहा कि अवाम और पुलिस के दरमियान फासले को ख़त्म करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। सांगड़ में पसंद की शादी ना कराने पर नौजवान ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी मां, दो बहनों और बहनोई का कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाशे तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। दो साल कबल पसंद की शादी करने वाली खातून को कत्ल कर दिया गया। आपको बताते चलें कि वर्षा के कहना है कि मकतूला को उसका शौहर रमज़ान मलिक और उसके साथियों ने मिलकर कत्ल किया और लाश को खेतों में फेंक दिया, जिस पर पुलिस ने लाश को तहसील अस्पताल गोडकी पहुंचा दिया। मीरपुर खास जिला कौंसिल का इजलास चेयरमैन अनवर तालपुर की सदारत में जिला कौंसिल हाल में मुनक्किद हुआ। यहाँ आपको बताएंगे इजलास में अरकान कौंसिल दीगर मेंबरान ने पंजाब की जानिब से दरियाए सिंध से 6 नए कैनाल निकालने की मज़म्मती करारदाद पेश की, जो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। जिला इंतज़ामिया की जानिब से ईंटों के रेट मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ज़रई बीजों और खाद के मसाइल पर कमेटी तश्कील देने, गैर मियारी और ब्लैक पर ज़रई बीज और खाद के फ़रोग़ को रोकने का ताउन किया गया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।